Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I'm audible to each and every one. Please let me know in the chat box if it is so. Quickly, guys. My screen visible, I am audible to everyone. Chaliye. So in the last class, we have discussed till question number 67. Today we will start with question number 68 and we will try to move at least 15 to 20 question in today's session so that we can finish it as early as possible. You will be getting the solution of paper 1 either today night or tomorrow morning. Anytime you can expect it will be available on your cloud for the purpose use. Just 10 questions are left for the review purpose. Rest all is done with the editing. So hopefully we will release it either tonight, late night or tomorrow so that you can use it as well. So let's start with question number 68, which is about we have been given two lists where in one list we have been given the landforms, which is one of the topic in your booklet 3. So in one we have been given the landforms, and another one we have been given the example of the same, and we have to match both of them. So ideally speaking, this question was dropped, right, by NTA because of some reasons, right, and reasons are still not clear to us also, right. But still, let's have a look at the probable matching options which are available in this, right? Why the NTA dropped it? First, the matter of the fact is that because none of the options was correct, right? We were having the availability, but none of the options are correct. I will show you that in the second half of the question. First, let go through the details which have been given. So the first thing they have asked about the glacial landforms, right? So as you know that glacial landforms are generally U-shaped valley, which we also know. And so glacial landforms are basically related to drumlins, and drumlins is a sort of glacial landforms. All of you should be aware. So glacial landforms basically go to drumlin. Drumlins are a sort of examples of glacial landforms. So you can see here that drumlins are streamlined, elongated hills composed of glacial deposit, right, that are formed beneath the glacier or ice sheets, and they typically appear in the group of called drumlin fields and are shaped by the movement of the ice over the sediments, indicating the direction of past glacial flow. And drumlins are symmetrical in shape with a steep side facing the direction of ice advancement and gently slope side, which we call as leeward side, is pointing on the direction of the ice retreat, जहां से ice घट रही होती है. तो ड्रमलिन कुछ इस तरह का दिखता है. We have already given the detail, the shape, material, formation, and everything about drumlin and the what is the formation process also, like how drumlin is formed, right? And these kind of structures are basically drumlins. ये जो structure आपको दिख रहे हैं ये ड्रमलिन्स की फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स हैं गाइस. इस तरह का दिखता है ड्रमलिन. अगर आप देखेंगे कभी पिक्चर तो आपका ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स का ड्रमलिन से रिलेशनशिप था. देन वी हैव द सेकंड वर्डिंग्स व्हिच हैव बीन गिवन इन द कॉलम. वन इज कॉल्ड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, राइट, or what you call as fluvial landforms. And fluvial landforms, the example is natural levee, right? So as you can see that fluvial landforms are geomorphic feature created by the action of rivers and stream. We can also call them as uh, uh, colluvial landforms also, right? And results from the process such as erosion, transportation, and deposition, which occurs as water flow across the landscape. And fluvial landforms can be classified into the main category based on their formation. So we have the lot of variety of the fluvial landforms which are there, which have erosional fluvial landform, which is V-shaped valley, waterfall and rapids, uh, gorges and canyons, river terrace. These all are examples. Then we have floodplains for depositional one. We have alluvial fans, which we studied, deltas, point bar, oxbow lakes, natural levee. Natural levee was picked up by the examiner as an example, which is one of the type of the fluvial landforms, right? And how the natural levee looks like, you should also understand that.
So this is the structure, something which natural levee looks like. You can see across the river bed, we can observe these kind of structures. So you can see that how the natural levees look like. So the deposits are on the sidewise and the river is going through. You can see uh, how high the deposits were being there in the sidelines. You can easily observe, right? So this is how the natural levee look likes. Then coming next, and all the details have been attached about the natural levee and all. Then third, we have Aeolian landforms. So all of you are aware that Aeolian landforms are the landforms which are brought about by wind, right? And a classical example of the same is ventifact. Ventifact is basically related to the uh, airborne landforms or Aeolian landforms. So Aeolian landforms are created by the wind's action through the erosion, transportation, and deposition sediments predominantly in arid and semi-arid region, and these landforms can be categorized into erosional and depositional type. दो तरह के होते हैं, right? And a lot of different categories have been given here कि कौन कौन से होते हैं, right? We have deflation hollows, blowout, yardings. Then ventifact is the last one, which we have took up as an example. So ventifact, rock shaped by wind driven and particle resulting in smooth polished surface and sharp edges. So they are the examples of ventifact. And how the ventifact look like, and sand dunes are also there, loess are there, sand sheets are there, ripples are there. Like this information is actually important. That's why we have kept it here. Like you should be aware about the fluvial landforms कौन कौन से होते हैं, glacial, Aeolian and storm generated, because ये again भी आपसे पूछा जा सकता है, right? तो ripples भी होते हैं, sand sheets भी होती है, loess, right? So this kind of landforms is ventifact, as you can see in the picture. This is one of the ventifacts which have been shown कि कैसा दिखता है ventifacts. तो आप देख सकते हैं एयर ने कट कर करके, ठीक है, ये बनाया है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टॉर्म जनरेटेड लैंडफॉर्म्स. कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स भी होते हैं जो स्टॉर्म से आपके जनरेट होते हैं, राइट? विच यू कॉल्ड स्टॉर्म जनरेटेड लैंडफॉर्म. यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ था हुमुकी क्रॉस बेडिंग्स, राइट? Which is one of the classical case which is popularly known as HCS. So storm generated landforms are feature created by the intense and dynamic forces associated with a storm, including high wind, heavy rainfall, storm surges and wave action, and these processes reshape coastal, fluvial and terrestrial landscape. And storm generated landform across the different environments are like we have different categories of examples in this also. Like we have the Humuki cross beddings which have been given. It is a sedimentary structure characterized by the undulating concave of swollen and convex up layer with the sandy sediments. So ये एक अलग तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पे ना, जिसको हम फेमसली बोल देते हैं कि इससे बना है की क्रॉस बेडिंग, HCS, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है. इसके अलावा भी काफी सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो स्टॉर्म जनरेट, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी. देख रहे हैं ना आप, कट लगे हुए हैं, ये रॉक्स के ऊपर ही कट है जो मुकी लैंडफॉर्म्स को जनरेट डिनोट करते हैं. देखिए आप, शेप बनी हुई है कट कर करके. तो ये जो कट्स लगे हुए हैं ये किसी और ने नहीं बनाए हैं, ये स्टॉर्म जनरेटेड है. इसको बहुत हैवी जो स्टॉर्म है उन्होंने इनको जनरेट किया है, ठीक है? तो ये बहुत सारे ऐसे बने हुए आपको मिलेंगे. इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स भी वी हैव मेंशन हियर, राइट? तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना? और क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसका जियोलॉजी में. तो यहाँ पे ना बहुत ही क्लियर कट ये ऑप्शन दिए हुए थे सारे के सारे, मतलब पॉपुलर एग्जांपल्स पिकअप किए थे. ऐसा नहीं है कि कोई साइड वाले एग्जांपल पिकअप किए हो, राइट? बट स्टिल क्यों इसको ड्रॉप किया गया उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ. देखिए जब आप इसको मैच करने जाएंगे और पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि वी हैव ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, जहाँ पे हमने बोला कि ड्रमलिन होते हैं, तो आपने ड्रमलिन से इसको मैच किया विच स्टैंड्स टू फोर्थ. तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप कट गए. तो बाकी सारे ऑप्शन कटने का मतलब क्या है कि A4 सिर्फ खाली एक ही में था. दिस इज ऑल्सो गॉन, दिस इज ऑल्सो गॉन एंड दिस वन इज ऑल्सो गॉन. अब जब आप बाकी के मैच करेंगे लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ कमी पड़ी होगी, तभी ये ड्रॉप करना पड़ा है टीचर को. देखिए क्यों. Then we have the fluvial landforms, which is levee. Okay, ठीक है. Then we have C, which is Aeolian landform, which is ventifacts. ठीक है.
एंड डी, डी को भी इसने इंस्टेड ऑफ 2 करने के 4 कर दिया। तो ये जो डी होना चाहिए था 2 ना, इसको इसने 4 कर दिया, और ये एक एरर जो टीचर की साइड से हुआ उसकी वजह से इन्होंने ड्रॉप कर दिया इस क्वेश्चन को। तो एनटीए तो अपना पीछा छुड़ा सकता है, इट शुड बी आइडियली D2। तो एनटीए अपना पीछा छुड़ा सकता है, उसको तो कुछ नहीं लगता, वो तो कह देगा ड्रॉप, मैं मार्क ही नहीं कर रहा, मैं 99 क्वेश्चन में से मार्किंग करूंगा। बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा भी आपसे पूछी जा सकती है चीजें, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यू शुड नो कि ये क्यों ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो ये ड्रॉप इसलिए हुआ है कि आइडियली स्पीकिंग दिस शुड बी गिवन एज D2। वो D2 था नहीं ऑप्शन में किसी में भी। ठीक है, जहां था उसमें आगे वाले ऑप्शन ठीक नहीं थे, तो ये ओवर स्मार्टनेस की वजह से किल हो गया क्वेश्चन। इसको वो कह देंगे कि ये क्लर्कियल एरर हुआ है व्हाइल टाइपिंग द क्वेश्चन पेपर, एंड वी वुड लाइक टू ड्रॉप दिस क्वेश्चन। तो आपके पास कोई सेवियर लॉजिक नहीं है, बट एनटीए के पास बहुत सारे हैं। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? तो इट शुड बी आइडियली D2। जो आपका स्टॉर्म जनरेटेड लैंडफॉर्म है दैट इज हुमुकी क्रॉस बेडिंग, HCS जिसको आप बोलते हो। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, क्यों ये ड्रॉप हुआ ये भी क्लियर है? और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है दोबारा रिपीट होने का, क्योंकि एवरी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हैव बीन आस्क्ड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रॉप क्यों हुआ है। So this was question number 68. Let's move to the next question, which is 69. Now let's move to the question number 69. ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये रिपीट हुआ है, लास्ट जो जून का एग्जाम था उसमें ये था क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो हर तरह की यहाँ पे आपको कोल फील्ड दी हुई है, और ये पूछा है कि लिग्नाइट टाइप का कोल कहाँ होता है। तो इसमें ना बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, क्योंकि जब आप डाटा देखते हैं तो आपको समझ में आता है यार ये तो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया जी, माकूम तो नहीं हो सकती ऐसी फील्ड जहाँ पे लिग्नाइट हो। लेकिन उसका लॉजिक कुछ और है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब व्हेन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन कि क्यों ऐसा हुआ है। तो इन क्वेश्चन नंबर 69 दे हैव सिंपली आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड बिलोंग टू लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल, की इसमें से कौन सी कोल फील्ड ऐसी है जो लिग्नाइट टाइप कोल, जैसे आपके पास 4 तरह का कोल है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, राइट। एक सब बिटुमिनस भी होता है, बट वी जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, और बेस्ट क्वालिटी उसमें एंथ्रासाइट ही है। तो आपको ये पता करना है कि लिग्नाइट टाइप का कोल इसमें कौन सा है। तो वी हैव बीन गिवन 4 कोल फील्ड, वन इज रानीगंज व्हिच इज इन वेस्ट बंगाल, देन अनदर वन इज सिंगरौली इन MP, मध्य प्रदेश, देन वी हैव माकूम कोल फील्ड इन असम, एंड देन वी हैव तलचर इन उड़ीसा। तो हम वन बाय वन चलते हैं सारों के पास और देखते हैं कहाँ पे लिग्नाइट है ना। तो फर्स्ट वन इज रानीगंज वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तो बिटुमिनस टाइप का कोल मिलता है भाई, लिग्नाइट नहीं मिलता है, तो ये तो रूल आउट हो गया। When you talk about Raniganj, West Bengal, it is a bituminous coal type, not lignite, और सारा डिटेल हमने यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया है। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है लिग्नाइट टाइप के कोल को, है ना। तो रानीगंज जो है ये कट हो गया, इसको तो हटा ही देंगे रानीगंज को। दूसरा हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, विच इज सिंगरौली इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सिंगरौली। तो सिंगरौली की जब आप बात करते हैं MP में, तो यहाँ पे बिटुमिनस टाइप का कोल मिलता है, लिग्नाइट नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखें, ये भी बिटुमिनस कोल फील्ड है, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज माकूम। अब ये माकूम को हमने क्यों लिग्नाइट टाइप में रखा है, उसका एक लॉजिक है। अगर आप डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्री हिस्टोरिक डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जो माकूम कोल फील्ड है असम में इज अ टर्शरी कोल फील्ड। जो टर्शरी कोल होता है, अलग अलग टाइप के कोल होते हैं, प्राइमरी कोल, सेकेंडरी कोल, टर्शरी कोल, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कोल फील्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न टर्शरी कोल लिग्नाइट। और टर्शरी कोल जो है वो लिग्नाइट ही होता है, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं, राइट। तो जब आपको ये पता चलता है कि भाई टर्शरी कोल मिलता है माकूम में, क्योंकि कहीं पे भी आपको ये एविडेंस नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि माकूम कोल फील्ड जो है वो लिग्नाइट है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा, जो भी लिटरेचर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी रिसर्च आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, कि माकूम कोल फील्ड जो है वो टर्शरी कोल फील्ड है। और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो टर्शरी कोल होता है वो लिग्नाइट टाइप का कोल होता है, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। तो tertiary coal is a soft brown sedimentary rock that's formed from the compression peat. It's a type of lignite which is geologically younger than the other type of coal, and such as bituminous coal and anthracite, and carbon content of tertiary coal has a carbon content of this much, है ना।
तो टर्शरी कोल को प्राइमरली हम फ्यूल और स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये एक एविडेंस था कि टर्शरी कोल जो होता है वो लिग्नाइट टाइप का कोल होता है। दैट्स व्हाई माकुम की कोल फील्ड इज सुटेबल फॉर लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी ये जो तलचर कोल फील्ड है उड़ीसा वाली, इसके लिए भी हमें कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन जगह जगह नहीं मिली है। तो जो तलचर कोल फील्ड है आपका अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, और ब्रह्मनी वैली के अंदर है ये, ठीक है, और बहुत अच्छे कोल रिजर्व यहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बहुत सारे कोल रिजर्व है और एक्सटेंसिव कोल फील्ड है, ये बहुत बड़ी कोल फील्ड है ना। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जो तलचर कोल फील्ड है इज क्लासिफाइड एज सब बिटुमिनस टू हाई वोलेटाइल बिटुमिनस रैंक बेस्ड ऑन विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस ऑफ दिस मच एंड वोलेटाइल मैटर ऑफ दिस मच एंड कार्बन कंटेंट ऑफ दिस मच। तो यहाँ पे आपको बिटुमिनस ज्यादा मिलता है, सब बिटुमिनस ज्यादा मिलता है, यहाँ भी लिग्नाइट का कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप वी हैव डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑप्शन। एंड फाइनली वी कंक्लूडेड कि जो माकुम कोल फील्ड है असम वाली, इसके अंदर आपको लिग्नाइट के डिपॉजिट मिलते हैं, विच इज वन कैटेगरी ऑफ द कोल। तो माकुम कोल फील्ड जो है असम वाली, दैट इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर हियर फॉर 69 इज थर्ड, माकुम कोल फील्ड और लिग्नाइट। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? देखिए हमने डिटेल आपको, एवरी बिट ऑफ साइंटिफिक डिटेल जो लॉजिकली पॉसिबल है वी हैव इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, और इससे ज्यादा डेप्थ सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल है, इतना आप अगर अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोबेबल क्वेश्चन होने वाले हैं इस बार के एग्जाम में वो भी आपकी कवरेज में काफी सारे आ जाएंगे, ठीक है। कोल फील्ड का देखिए, आप कोल फील्ड पे ऐसे जा नहीं सकते, कोल फील्ड तो कई है इंडिया के अंदर, पर अब वो पूछने वाला वैसे जहां तक मुझे लग रहा है ये चार और जो पिछली बार चार आई थी उनको आप बस थोड़ा ध्यान में रखें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। देखो एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो इट हार्डली मैटर्स, वो डिसाइड नहीं करता। आप ये भी देखिए ना, इस पेपर का कट ऑफ कितने पे लगा, 60% पे। तो मतलब आपको 100 में से 60 ही क्वेश्चन ठीक करने थे, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली है कि वो नीचे को जाएगी कट ऑफ, ठीक है। शायद आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें चाहता होंगी तो वो नीचे जाएगी कट ऑफ, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब ये तो मेमोरी बेस्ड टाइप हो गया ना, ठीक है। तो हमेशा लेकिन वैसा पेपर डिजाइन नहीं होता है, इट इज लाइक वंस इन अ वाइल जब इस तरह का पेपर डिजाइन होता है, ठीक है। क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि भाई प्रेशर था उनके ऊपर, बिकॉज द पेपर वाज लीक्ड अर्लियर एज प्रोजेक्टेड, तो उनको कुछ चीजें ऐसी करनी थी कि जो आजू बाजू मिले ही ना, ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा उठाना है, राइट। सो दैट्स व्हाई एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखिए जस्ट अ मिनट भाई, ये बिल्कुल ठीक आप फैक्ट कह रहे हैं कि जो प्राइमरी कोल है वो एंथ्रासाइट का है। एक क्वेश्चन ये युगांशी का यहाँ पे था कि एंथ्रा ये प्राइमरी कोल क्या है, तो प्राइमरी कोल एंथ्रासाइट कोल है, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 70। तो काफी सारी अच्छी डिटेल्स यहाँ पे है गाइस, इसको पढ़िएगा जरूर, इसीलिए हम सिस्टमैटिकली डिस्कस कर रहे हैं कि उतने उतने पेजेस अगर आप रोज डाइजेस्ट करते हैं
इट विल डेफिनेटली हैव अ बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन योर अपकमिंग अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, वहां पे आपको 15-20 क्वेश्चन का एडवांटेज जरूर दिखेगा, मतलब फॉर श्योर 110%। लास्ट टाइम भी ऐसा मैंने देखा है कि जिनको जो लीक पेपर था जून वाला, जो उसको अच्छे से डिस्कशन को सुन के गए थे, काफी क्वेश्चन का बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को मिला। राइट, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं और जरूर करना है। और पेपर 1 भी आज या तो लेट नाइट तक या कल सुबह आपके हाथ में होगा विद ऑल द 50 क्वेश्चंस इन डिटेल। ठीक है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, अभी स्टिल हैव अ टाइम। राइट, so let's talk about question number 70, which says which type of the following is not linked to biodiversity loss and ecosystem services। अब देखिए इसने बात क्या की, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट पूछने की कोशिश की है। जनरली बच्चा ये पढ़ के आता है कि इकोसिस्टम सर्विसेज और बायोडाइवर्सिटी कौन कौन प्रोवाइड करता है। राइट, बट यहाँ पे ये पूछा है रिवर्स ऑर्डर में कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बात नहीं करता है। राइट, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं डिटेल्स को, और ये सब चीजें आप करके जाइएगा क्योंकि कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ऑप्शन में बात की है IPBES, which is Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services। तो ये तो देखते समझ में आ गया भाई, बात ही इसी की कर रहा है ना। It is an international body established to provide policy makers with objective scientific assessment about the state of the biodiversity and ecosystem and their contribution to the people. It function in similar way to the Intergovernmental Panel on Climate Change, but focus on biodiversity and ecosystem। इसका तो मेन काम ही यही है, मतलब IPBES का यही मेन काम है कि हम असेसमेंट करें, नॉलेज जनरेट करें अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, और ये सिर्फ इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में ही बात करता है। 4 इसके मेन फंक्शन है: एसेस करना, नॉलेज जनरेट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना और पॉलिसी सपोर्ट देना। देन द सेकंड ऑप्शन विच वाज गिवन वाज CEM, which is Commission on Ecosystem Management। Right, so the Commission on Ecosystem Management as a part of International Union for Conservation of Nature, IUCN की एक बॉडी है, have several key function aimed to advance ecosystem management and contributing to biodiversity conservation। Here are its main function। Right, तो ये देखो लिखा तो है कि IUCN के अंडर में, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है ये आप जरा ध्यान से पढ़ना। तो ये क्या करता है, ये मेनली एक्सपर्टाइज एंड साइंटिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि भाई हम एक्सपर्ट प्रोवाइड कर देंगे और साइंटिफिकली आपको बता देंगे। फिर ये प्रमोट करता है इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट। राइट, है ना। तीसरा ये करता है पॉलिसी एडवाइस एंड डिसीजन सपोर्ट, और चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। राइट, तो ये इसके मेनली जो है 4 काम है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात नहीं कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात नहीं कर रहा है और ना ही इकोसिस्टम सर्विसेज की बात कर रहा है ना। इकोसिस्टम सर्विसेज की बात भी ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कि ये इस दर्जे में नहीं आता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है MEA, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। ये तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करेंगे क्योंकि ये मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है, तो इकोसिस्टम सर्विसेज की तो यहाँ पे बात होगी, है ना। इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में ये बात करते हैं और बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी ये बात करते हैं फॉर श्योर, क्योंकि इकोसिस्टम हेल्थ की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको एक दिया हुआ था, इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, TEBB, जो मेंशन किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल 100% बात करेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव है ये, जो एक इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करता है। तो ये जो कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, ये सिर्फ खाली मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ये वहां पे ये बात नहीं कर रहा है आपसे कि भाई मैं जो है इकोसिस्टम सर्विसेज या बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, जो कंजर्वेशन यूनियन है वो बात करेगी बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। ठीक है, या इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, सॉरी, इकोसिस्टम, ये जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है ये बात करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है सेकंड रहेगा,
विच इज द कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ये लोग जो है मैनेज करने की बात करते हैं विद द साइंटिफिक इनपुट। तो ये काफी डेप्थ का क्वेश्चन था, मतलब ये सारी एजेंसियों के बारे में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है ना। आईयूसीएन, आईयूसीएन के बारे में 1948 में आईयूसीएन जो है आपका फाउंड किया गया था। ठीक है, 1948 में फाउंड हुआ था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अक्टूबर 1948 की कहानी है, फ्रांस के अंदर। ठीक है, पॉन्टाबेल जगह का नाम था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है शिक्षा यादव को? ठीक है जी, 1948 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लो। आफ्टर द 1 ईयर ऑफ योर इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस अपना लिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 70 में हो जाएगा जी, 2। ठीक है, तो इस बार का पेपर जो था आपका इकोलॉजी बायस था, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन थे इकोलॉजी से। सबका हिस्ट्री आप नहीं परखिए भाई कि कब ये आया था। बड़ा मुश्किल है, ऐसे हिस्टोरिकल नहीं डाटा पूछेगा उतना ज्यादा। एक आधी चीज पूछ सकता है, बट इतना ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। इनकी एक्टिविटी पूछ सकता है। ठीक है, आईयूसीएन तो चलो एक पर्टिकुलर बॉडी है। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो 12th क्लास का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। और पहली नजर में बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मार्क कर दिया, ऑल विल एग्जिट इक्वली। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन था। और राउल्ट्स लॉ आपको पढ़ाया जाता है बार बार सॉल्युबिलिटी में और वैसे भी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप माइंड को यूज करते हैं तो ये 12th क्लास का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें कुछ भी बीएससी एमएससी लेवल का नहीं है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पूरा कोर्स हमारा हो चुका है, और कल उसका टेस्ट भी है आपका। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दो ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि कुछ कुछ न्यूमेरिकल आए हैं इस बार भी, तो भी एक्सपेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, बेंजीन, टोलुईन, इथिल, इथाइल बेंजीन, जाइलीन। ये मैं पढ़ाता ही था आपको कि आपके जो है एंथ्रोपोजेनिक वीओसी है, बीटीईएक्स, बेंजीन, टोलुईन, इथिलीन एंड जाइलीन। बस इसमें इसने एक ये कोड दे दिया, दे आर अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैसोलीन। ये पेट्रोल में मिलते हैं आपके। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली दिस मच। इनमें सारे ये जो दिए हुए ना, जैसे बेंजीन है उसका 0.126, जो आपका टोल्वीन है 0.0380, जो इथाइल बेंजीन है 0.0126, एंड जाइलीन जो है 0.0117। ये इसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। अज्यूमिंग इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर कहने का मतलब क्या है कि एंड ओबेइंग द राउल्ट्स लॉ। इक्विमोलर मिक्सचर कहने का मतलब क्या है, सबका मोल फ्रैक्शन इक्वल है। अगर 4 कंपोनेंट है तो 1/4 मोल सबके हैं। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर कहने का मतलब ये है, तो आप ये समझ जाइए कि बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स भी 1/4 है या 0.25 है, टॉल्वीन के भी 1/4 है, क्योंकि 4 कंपोनेंट है। इथाइल बेंजीन के भी 1/4 है, जाइलीन के भी 1/4 है। इक्विमोलर लिखते ही आपको ये समझ जाना था, क्योंकि 4 कंपोनेंट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सर्ट मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर। तो जिन भी लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा है या कभी भी राउल्ट्स लॉ से वो रूबरू हुए हैं, तो वहां पे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को वहां पे मिलती है। पहली मिलती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, विच यू से पी नोड ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोड ए इज इक्वल टू काई बी। ठीक है, कि सॉल्वेंट का जो मोल पार्शियल प्रेशर में डिक्लाइन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दूसरी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पे पढ़ने को मिलती है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरी मिलती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथी मिलती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर, जो मैंने आपको बताया। 4 प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव पढ़ने को आपको वहां मिलती है, राउल्ट्स लॉ जब आप पढ़ते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न उतना डिटेल में नहीं, हमें तो सिर्फ एक चीज पे यहाँ फोकस करना था, कि जब भी आप किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हो, तो दैट पार्शियल प्रेशर इज रिलेटेड बाय द मोल फ्रैक्शन लाइक दिस।
कि जो पार्शियल, यहाँ पे पीआई क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। बस ये जिसको रिलेशनशिप पता था ना, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है आपका किसी भी कंपोनेंट का या किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। अब देखो कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। जैसे ही आपने लिखा ये फार्मूला है, तो भैया जो आपका पार्शियल प्रेशर, जैसे लेट अस सपोज मुझे अगर ये लिखना था किसी के लिए भी, मैं यही डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। मान लो मुझे सबसे पहले लिखना था बेंजीन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन should be equal to mole fraction of benzene into, क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जो हमें दिया हुआ है, जो कि हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है प्योर बेंजीन का, गाइस हमें दिया हुआ 0.126। अब मोल फ्रैक्शन तो देखो कितना है, ये जो काई है मोल फ्रैक्शन बेंजीन सबके लिए 1/4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, या आप 0.25 लिख लो, आपकी मर्जी है, इनटू, तो मैं 1/4 ना लिख के मैं 0.25 लिख रहा हूँ, है ना, 1/4 ना लिख के मैं 0.25 लिख रहा हूँ, तो एक ही बात है, इनटू जो मोल फ्रैक्शन था बेंजीन का कितना था 0.126, ये तो बेंजीन के लिए आ गया। ऐसे ही जब आप लिखेंगे किसके लिए, फिर आप लिखेंगे टॉल्यूइन के लिए, तो टॉल्यूइन का कितना था जी, ये भी 0.25 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, और उसकी वैल्यू थी 0.038। तीसरे का लिखेंगे इथाइल बेंजीन का, उसके लिए भी 0.25 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.0126। चौथे के लिए आप लिखेंगे, ठीक है, जाइलीन का, जाइलीन के लिए भी मोल फ्रैक्शन 0.25 इंटू वैल्यू कितनी है 0.0117। अब मुझे एक बात बताओ, ये 0.25 तो सब में सेम है, तो जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो मैक्सिमम कौन करेगा, जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ये कंपोनेंट जो है, ये वाले कंपोनेंट जिसके सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे ज्यादा किसका है, बेंजीन का है। तो भैया करेक्ट आंसर बेंजीन हो गया, यही हमने सारी जो है सोल्यूशन में डिटेल ऐड करी है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन था। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया ये तो 12th क्लास का है, और ये पहले एक बार जेई में आया हुआ है 90s में, ये क्वेश्चन एक बार जेई के पेपर में 90s में आया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे कि इक्विमोलर मिक्सचर है ना, या 50-50 मिक्सचर है, 1/2 हो गया मोल फ्रैक्शन, और इतना वेपर प्रेशर है, तो किसका जो है पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। बस यही हमने सारा नीचे जो आपको दिखेगा सॉल्व किया हुआ है, देखिए कि सबका वेपर प्रेशर जो है 1/4 आएगा या 0.25 आएगा, फिर हर कंपोनेंट का हमने करके दिखा दिया वैल्यू। बेंजीन कितनी आ रही है, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 0.25 तो कॉमन ही है सब में, तो ये डिपेंड करेगा जिसका पार्शियल प्रेशर जो है ज्यादा होगा, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है जो ऐसा बन रहा है, वैल्यू कैलकुलेट भी करके देखे तो बेंजीन की सबसे ज्यादा आती है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई बेंजीन ही सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, 0.0315 आ रही है, टॉल्यूइन की इतनी आ रही है, इथाइल बेंजीन की ये आ रही है, जाइलीन की ये आ रही है, तो इनमें सबसे ज्यादा जो तकड़ा विनर है, बाकी ये आंखों से देख के लगाने वाला क्वेश्चन था कि जिसका भी वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा वही जीतेगा, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर है, मोल फ्रैक्शन सबका सेम है, मोल फ्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आई होप ये सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किसी भी चीज का जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मल्टीपल होता है। अगर मोल फ्रैक्शन सेम है तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, अगर आपका मोल फ्रैक्शन सेम है। तो ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया था, एंड द करेक्ट आंसर इज बेंजीन हियर। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, सबको समझ में आया कैसे करना था ये। बहुत से लोग पूछ रहे सर बड़े टफ टफ न्यूमेरिकल, टफ टफ न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपकी 12th क्लास की नॉलेज को जज किया गया है सिर्फ यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया गया। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में जल्दी बताइए भाई।
anyone having any doubt in question number 71? क्लियर है? बाकी लोग क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर ये आपको आने चाहिए, कुछ ना कुछ ये सिखा के जा रहा है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है राउल्स लॉ के ऊपर, और गिलबर्ट में इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम भी पढ़ाते हैं, थर्ड में ये तो दिया हुआ है। वाह जी वाह। ये क्वेश्चन जो 72 है, ये इकोलॉजी इवोल्यूशन के गेट में आया हुआ था एक बार, वहीं से डायरेक्टली इसको उठा के यहाँ रख लिया गया है। ठीक है, जो बायोडायवर्सिटी मेथड होता है ना, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। ठीक है, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड, या जिसको आप लिंकोलिन पीटरसन मेथड भी कहते हैं, है ना। तो पहले तो इस मेथड को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ग्रेट इकोलॉजी और रिवोल्यूशन में। ये कम से कम भी 5 से 6 बार आ चुका है 2017 से लेके अब तक, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन का बहुत पेट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 180 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वर कैप्चर। पहले एक रैंडम सैंपल कैप्चर किया हमने 180 इंडिविजुअल में से, उनको मार्क किया, उन पर निशान लगाया, उनको रिलीज कर दिया। आफ्टर फ्यू वीक्स अ सेकंड सेट ऑफ 44 इंडिविजुअल्स वर कलेक्टेड। उसके बाद फिर से दोबारा हमने 44 इंडिविजुअल कलेक्ट किए। आउट ऑफ दीज 44 इंडिविजुअल्स 7 वर मार्क्ड, उसमें से 7 मार्क थे। तो एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज वुड बी, ये फिक्स है, मतलब इसको ये मेथड यूज किया ही जाता है जब आप बायोडायवर्सिटी की स्टडी करते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं इसको। देख लीजिए क्या ये मेथड है, पहले जो लिंकोलिन पीटरसन मेथड है, इसको देख लीजिए। तो लिंकोलिन पीटरसन मेथड विच एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज बेस्ड ऑन द मार्क्ड रिकैप्चर डाटा। Mark recapture technique is used to estimate the size of population, but it is impractical to count every individual. The basic idea is that you can capture a small number of individuals, put a harmless mark on them, and release them back into the population. At the later date, you can catch another small group and record how many have marked. In a small population, you are more likely to recapture marked individual, where a large population you are less likely, and this can be expressed mathematically using the equation below. तो इसको हम एक टेक्निक मान लेते हैं स्टडी करने की, कि इस बंदे की हम लाइव स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, दैट n इज इक्वल टू m इंटू सी डिवाइड बाई r। अब ये है क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें हैं? तो n है आपका एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, जो हमें निकालने हैं। ठीक है जी, n हमें निकालना है। m क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर्ड, जो आपने मार्क किए, कैप्चर्ड एंड मार्क 180 शुरू में हमने लिए थे टोटल। दूसरा जो आपको मैट्रिक्स दे रहा है सी, क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैप्चर्ड एंड सेकंड टाइम विद एंड विदाउट द मार्क। 44 हमने दोबारा रिकैप्चर किए हैं, जिनमें मार्क हो ना भी हो, और आर उसमें से हो जाएगा कितने उसमें से मार्क्ड होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिकैप्चर्ड विद मार्क। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एन इज इक्वल टू एम सी बाई आर। तो एन इज इक्वल टू एम सी बाई आर, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि एम इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर्ड एंड मार्क्ड 180। सी आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैप्चर्ड एंड सेकंड टाइम विच वाज 44, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया 44। और आर क्या है आपका? आर आपका हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिकैप्चर्ड। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा बड़ा इजीली, 1131.43। तो अप्रोक्सीमेटली एक ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1131, जो आपका करेक्ट आंसर है। और इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1131 इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये गेट में बार बार आता है। एटलीस्ट कम से कम 10 से ज्यादा बार देख चुका हूं मैं गेट में, गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन वाले में इस क्वेश्चन को मैं 10 टाइम से ज्यादा इसकी रिपीटिशन है, और ये दोबारा भी आ सकता है, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये दोबारा भी आ सकता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। चलिए जी, हम आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। ये तो कम से कम भी 50 बार रिपीटेड क्वेश्चन है अलग अलग जगहों पे। 73 क्वेश्चन जो है इतनी बार रिपीट हुआ है, इसका हमें भी नहीं पता है। और इतना इजी इसको डेसिफर करना था कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, उनको मैं कहूंगा उनको बहुत, मतलब इजी चीजों को भी गलत करने की या तो शायद फिर आदत है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था जो हमने ऑब्जर्व किया इस पेपर के अंदर व्हाइल असेसिंग द पेपर। द एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। जैसे ही उसने वर्ड लिखा,
आपको अपनी बुकलेट के वो पेज याद आने चाहिए थे कि फोटो केमिकल स्मॉग सर ने पढ़ाया, एंड सर सेड आई लॉस्ट फोटो ऑफ माय एंजल। तो फोटो केमिकल स्मॉग में सबको मैंने पढ़ाया हुआ है कि फोटो केमिकल स्मॉग में आपके वीओसी होते हैं, नॉक्स होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है जी, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, सेकेंडरी ओजोन होती है, ठीक है, आपके एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, बस। अब जैसे ही आपने देखा ऑप्शन को, पहले ऑप्शन पे तो मैं कट मार दूंगा क्योंकि ये फोटोकेमिकल स्मोक का है ही नहीं, ये तो लंदन स्मोक का ऑप्शन है, इसको तो वैसे ही हटा दो। ये चीज तो आपको लंदन स्मोक में मिलेगी, कट गया। स्मोक और वाटर वेपर। अब स्मोक तो दो तरह के हो सकते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक या लंदन स्मोक, ये तो कोई एसेंशियलिटी नहीं, हमें तो बात की है कि फोटोकेमिकल स्मोक होना चाहिए पर्टिकुलरली। तो सेकंड ऑप्शन भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि स्मोक तो एक कंपोनेंट है, फॉग नहीं है इसके अंदर, फॉग गायब है, तो सिर्फ स्मोक से काम नहीं चलेगा, और वो भी लिखा होना चाहिए, तो ये भी कट गया। तीसरे वाला भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक पैरामीटर आप फोटोकेमिकल स्मोक का ले रहे हो, वीओसी, SO2 आप लंदन स्मोक का ले रहे हो, तो ये भी कट गया। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे है, देखिए नॉक्स भी मिल गया, वीओसी भी मिल गए, और टेम्परेचर भी हाई मिल गया। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा गाइस, वो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। बहुत इजीली टैकल्ड क्वेश्चन था ये। नॉक्स होना चाहिए NO+NO2, VOCs होने चाहिए सच एज बेंजीन, टॉलुईन, इथिलीन, जाइलीन, और टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फॉर फोटोकेमिकल स्मोक, या फिर जिसको आप क्लासिकल स्मोक कहते हो या ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ स्मोक कहते हो। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जिसको मैं कहूंगा इस पेपर का, सितंबर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्लियर है सबको? तो ये देखना आपको आना चाहिए, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये इतना आसान सा क्वेश्चन भी मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, PYQ से आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दैट शोज कि आप सीरियसली नहीं पढ़े हैं अगर गलत होता है तो ये ध्यान रखना है जरूर हमेशा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। 74 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 से ज्यादा बार ये रिपीट हो चुका है। ऑर्डर ऑफ EIA, मुझे याद नहीं है कितने पेपर्स में मैंने ऑर्डर ऑफ EIA देखा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ये बार बार कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग फॉर्म में कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेस को अरेंज कर दीजिए सिर्फ आप, ठीक है। अब अरेंज करने में एक मेन बात आपको दिमाग में रखनी होती है हमेशा कि डिसीजन मेकिंग EIA के बाद होती है, सबसे लास्ट स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग, अगर आपको याद आ रहा हो तो, जब सारे स्टेप से थ्रू कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस, राइट। EIA प्रोसेस को जब आप अरेंज करेंगे तो गाइज, अब मुझे तो अब याद हो चुका है, आपको भी याद हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हम करते हैं एनालिसिस, ठीक है ना। नंबर 1 पे हमेशा एनालिसिस होती है, ठीक है। जो डाटा आपने लिया है, जो भी बैकग्राउंड डाटा है, कुछ भी जो भी है आपके पास, फिर आपका होता है एनालिसिस करने के बाद आप कुछ मिटिगेशन मेजर उसमें सजेस्ट करते हैं। फिर आपका होता है EIA रिपोर्टिंग, या जिसको EIS कहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। फिर आपका होता है रिव्यू, पब्लिक हियरिंग एंड रिव्यू। और लास्ट में आपका होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो स्टेप है वो लास्ट है कि ये प्रोजेक्ट होना है कि नहीं होना है। तो बस मैंने तो इसको अरेंज कर देना था, इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब इट्स लाइक अ रिपीटेड सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आप इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये माइंड में रहना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग लास्ट स्टेप है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं था दूसरा कुछ, क्योंकि बेसिक आइडिया सबको है EIA के बारे में कि सबसे पहले एनालिसिस होगी, फिर यहाँ पे मिटिगेशन की बात होगी, फिर आपका EIA रिपोर्टिंग होगी, फिर आपका रिव्यू होगा, पब्लिक हियरिंग होगी, और फिर आपका डिसीजन मेकिंग होगा। और ये सारी टर्म्स को हमने क्लियरिटी के साथ यहाँ पे वी हैव मेंशन कि व्हाट मींस एक्चुअली व्हाट। तो आपको ये पता होनी चाहिए चीजें कि ये सारा देखिए आपने मेंशन किया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो स्टेप्स हैं
सब आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनिंग होता है सबसे पहले, स्कोपिंग होगा, देन यू हैव एनालिसिस, मिटिगेशन, या ये रिपोर्टिंग एंड रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, एंड फाइनली पोस्ट मॉनिटरिंग रिव्यू जो होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सब स्टेप है। मनीषा मैम ने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक और वहां पे कवर्ड है। मतलब इट्स अ वेरी simplistic and repetitive question which we have seen continuously from so many years कि ये बार बार आ रहा है। Is it clear? क्वेश्चन नंबर 74 में किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका थर्ड रहने वाला है जी। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। क्लियर है 74। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 74 इज थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 75। इस तरह का क्वेश्चन भी एक पहले आ चुका है कि जब आप कोई भी रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उसमें स्टेप कैसे कैसे आप फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये बस यही है कि जब आपको रिग्रेशन पढ़ाया गया तो उसमें क्या क्या आप कैलकुलेशन करते हैं, उसी को आपको माइंड में रख के इस क्वेश्चन को आंसर देना था। अब ये ट्रेंड बन गया है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें किस किस तरह से स्टेप होंगे, चाहे वो टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, इनोवा हो, तो टीचर इनडायरेक्टली उसको पूछ रहा है आजकल कि हमें आप स्टेप बता दो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफिक वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन असेसमेंट ऑफ द मॉडल फिटनेस। रिग्रेशन एनालिसिस जब आप करते हैं, ठीक है, अरेंज दी स्टेटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस और हेल्प इन असेसिंग द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द मॉडल। डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो आप पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उसी को आपको अरेंज करना है। और आप नीचे स्टेप देख सकते हैं हमने करा है। तो सबसे पहले आप एस्टिमेट करेंगे यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो होगा, estimate the value of a and b from the equation y is equal to a plus bx। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ रेजिड्यूज। रेजिडुअल वैल्यू आपकी फिर कैलकुलेट होगी। ठीक है, उसके बाद इन द वेरी थर्ड स्टेप यू विल एस्टिमेट द मीन ऑफ द रेजिड्यूज जो है आपका, है ना? देन यू विल डू द असेसमेंट ऑफ द मीन फिटेड डिपेंडेंट, है ना, over the independent variable y, how it changes with the x, and then finally what you will do, finally you will have the assessment of the mean of the residues। ये लास्ट स्टेप्स है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, और उसी को टीचर ने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना दिया कि भाई मैं कैसे अरेंज करूं। तो अरेंज करने का तरीका यहाँ पे दिया ही हुआ है कि सबसे पहले सी आएगा, आपको पहले ए और बी की वैल्यू चाहिए, उसके बाद रेजिड्यूज की वैल्यू चाहिए, फिर मीन कैलकुलेट करना है रेजिड्यूज का। तो ये स्टेप अगर माइंड में थे तो यू कुड हैव इजीली रीच टू द करेक्ट आंसर, कि सबसे पहले हमें करना होता है estimate of the value of a and b, and then we have to do the values of residues। so the correct answer here would be 2। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये कुछ नहीं है, बस स्टेप है। रिग्रेशन एनालिसिस जो आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया गया उसके स्टेप्स है। अगर स्टेप्स आपके माइंड में है देन यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 75 जल्दी बताइए फटाफट से, क्विकली। ठीक है, तो बस सिर्फ आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि कौन सा स्टेप्स पहले आता था, कौन सा से। और ऐसा क्वेश्चन जून में जो है काई स्क्वायर के लिए आया था, इस बार रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आया है, अगली बार हो सकता है किसी और के लिए आ जाए। तो स्टेप्स जरूर ध्यान रखने हैं कि पहले क्या करते थे, बाद में क्या करते थे। उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में नहीं है, उसका इंटरेस्ट है कि ये कैसे फॉलो होता है, पता है कि नहीं पता है। तो दिस वाज 75। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।